हे गाइस, हाय। क्वेश्चन इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अगर ये वर्ड क्लियर है ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन इज लॉस ऑफ कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड। आप कार्बन को निकाल रहे हो, यू आर ब्रेकिंग अ CC बॉन्ड। व्हेन यू आर ब्रेकिंग ग्लूकोज, यू आर ब्रेकिंग अ CC बॉन्ड and as a result the extra carbon is losing as CO2. Oxidative, that means decarboxylation is not happening alone, it is accompanied by, इसके साथ क्या हो रहा है, there is a loss of electron from the substrate and most likely इस इलेक्ट्रॉन को आपने किसको दिया, you gave it to NAD+, जिसने H+ के साथ इस इलेक्ट्रॉन को फॉर्म एक बॉन्ड बनाया एंड बन गया NADH. So you basically are asked how many times a carbon is lost and at the same time an electron is ejected from the substrate और उस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके you have made NADH, oxidative decarboxylations. अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा कहाँ? So let us start our story with one glucose. One glucose will undergo glycolysis. Glycolysis होगा. Glucose is a 6 carbon compound. ये किस में टूटेगा? 2 molecules of pyruvate. Right? It will break into 2 molecules of pyruvate. Pyruvate is a 3 carbon compound. So everything that happens here will happen twice. अब जो भी होगा वो 2 बार होगा. Why? Glucose is a 6 carbon, pyruvate is a 3 carbon. So pyruvate के साथ जो भी होगा, whatever will happen with pyruvate will happen twice. Now pyruvate breaks into acetyl coenzyme A, which is a 2 carbon compound. अब 3 carbon compound 2 carbon compound में break हो रहा है. A 3 carbon compound is breaking into a 2 carbon compound. एक कार्बन गया, गॉन. एक कार्बन कहाँ गया? सो एक कार्बन जब गया तो CO2 फॉर्म हुआ. बट CO2 के साथ साथ व्हेन यू ब्रेक पायरुवेट, जब आपने पायरुवेट को ब्रेक किया तो बिटवीन द CC बॉन्ड देयर वाज एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन. उस एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन को आपने NAD को देकर यू गेव इट टू NAD+ plus H+ and you gave it and formed NADH. ठीक है? So this loss of CO2 is decarboxylation. This making of NADH is oxidation. So what did you do? Oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation फर्स्ट प्लेस पे यहां हुआ है और ये कितनी बारी होगा? 2 बारी होगा. 2 times. Why? Because you had 2 pyruvate molecules and one pyruvate molecule will undergo one oxidative decarboxylation. 2 pyruvate molecules will undergo 2 oxidative decarboxylations. Clear? As a result, we'll have 2 acetyl coenzyme A's. अब 2 acetyl coenzyme A will enter Krebs cycle. अब Krebs cycle का शॉर्टकट हमें याद है, CIA success is famous. CIA success is famous. Citrate, isocitrate, alpha ketoglutarate, succinyl coenzyme A, succinate, fumarate, malate, oxaloacetate. ये है आपका Krebs cycle. और इसमें क्या होता है, जब isocitrate is a 6 carbon compound. अब आप बोलोगे ये 6 कार्बन कंपाउंड कैसे बना? क्योंकि oxaloacetate is a 4 carbon compound. जब oxaloacetate forms citrate तो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन उसके साथ ऐड हो जाता है. सो 4 कार्बन ऑफ oxaloacetate एंड ये oxaloacetate वापस आता है ना. Krebs साइकिल इसीलिए तो कहते हैं साइकिल में घूमता है. 4 carbon of oxaloacetate, 2 carbons of acetyl coenzyme A forms 6 carbon. So citrate is 6 carbon, isocitrate is also 6 carbon.
अब आइसोसाइट्रेट फॉर्म्स अल्फा कीटोग्लूटरेट। इस केस में अल्फा कीटोग्लूटरेट इज वंस अगेन अ 5 कार्बन कंपाउंड। अल्फा कीटोग्लूटरेट फॉर्म्स सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम में फिर से एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब आप समझ सकते हो दोनों ही साइड में क्या हुआ होगा। दोनों ही साइड में एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हुआ है। सो दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों? कार्बन का लॉस हुआ। अब कार्बन का लॉस होते समय हमने एनर्जी भी बनाई एंड वी क्रिएटेड NADH, द एनर्जी कैरियर। ठीक है, हमने एनर्जी का ट्रांसफर भी किया एंड वी क्रिएटेड NADH। सो अब आप देखो, एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक क्रेब्स साइकिल करेगा। ठीक है, वन एसिटाइल कोएंजाइम में डज वन क्रेब्स साइकिल। सो वन क्रेब्स साइकिल विल अंडरगो टू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मेरे पास दो एसिटाइल कोएंजाइम ए थे। एज अ रिजल्ट ऑफ वन ग्लूकोज आई हैड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। So that means I will do 4 oxidative decarboxylations in Krebs cycle, right? अब आप पूरे पिक्चर को देखो। So how many oxidative decarboxylations do we have? यहां से लेकर यहां तक you have 3 oxidative decarboxylations, but 3 needs to be multiplied with 2. क्यों? एक ग्लूकोज ने 2 पायरुवेट बनाया था। That is why you will have 6 oxidative decarboxylations possible. And actually this makes sense. आपके एक ग्लूकोज में 6 कार्बन थे। All the 6 carbons will be lost. So oxidative decarboxylations भी कितने होंगे बेटा? 6 होंगे। सिंपल है। अब एक बात ध्यान रखो, हम क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे। Either we will ask you this question: how many oxidative decarboxylations occur per glucose in aerobic respiration? आंसर हो जाएगा 6. Or we could have asked you how many oxidative distinct, how many, इसमें हमने ऐड कर दिया, मान लो ऐड कर दिया, how many distinct oxidative decarboxylation reactions occur per glucose? अब आप गिन सकते हो, देयर आर ओनली 3 डिस्टिंक्ट, 3 अलग अलग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस है ना। एक पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम है, दूसरा आइसोसाइट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटरेट, तीसरा अल्फा कीटोग्लूटरेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम है। सो अगर पूछा हाउ मेनी रिएक्शंस, 6, सॉरी हाउ मेनी डीकार्बोक्सिलेशंस, 6, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिएक्शंस, ओनली 3। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बेटा, बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, टेक केयर।